behalf of Symbiosis Skills and Professional University, I welcome all of you to this session where we'll be having an introduction to the courses that Symbiosis Skills and Professional University offers. And also, we have an expert in Mr. Vivek Velankar, who is an expert in career counseling. Now, his advice is coming to you and reaching out to you with elements of all consideration that will make our young students pick the course of their choice and also pursue the same for a well-established and a successful career in their lives. So friends, students, parents, I request you all to kindly ensure that there is no disturbance during the presentation and during the career counseling sessions so that you get the best of the presentation and the counseling by the expert, Mr. Vivek Velankar. This is Dr. Rajendra Prasad, Director of Retail Management, Symbiosis Skills and Professional University. I'm happy to present the courses that we offer in BBA Management in Symbiosis Skills and Professional University. We have courses like BBA Retail and E-commerce Management, BBA Logistics and Supply Chain Management, BBA Ports and Terminal Management, and our new launch this year is BBA Digital Media and Marketing. Now, all these courses come under this management course of BBA. The courses are all 3 years degree program. I repeat, it's a 3-year degree program broken up into 6 semesters, each semester for 6 months. I'm very proud to present to you the snapshots of our premises, the premises of Symbiosis Skills and Professional University, which is situated on 15 acres of land off Mumbai-Pune Expressway. I can hear disturbances, so may I request you all to please mute your mic. This is a sincere request. Yeah. We have an administration block, academic block, amphitheater, auditorium, library block, administration again, and then we have academic, hostel, and skill center. All this set up on 15 acres of land, spacious. It gives a feel of a foreign environment, and definitely, yes, the right kind of environment where students can pursue not only their curricular, extracurricular activities, but also co-curricular activities. I'm happy that all of you are present at the beginning of this entire presentation so that you get a proper introduction not only to the course, but also the environment in SSPU. Highlights of our programs, the program of BBA, which is Retail, Logistics, Ports, and Digital Media, are such that, we are the first skill development university in the state of Maharashtra. Here, the skill approach is such that students not just learn from the theory and the books, but also hands-on experience. It's an experiential learning. The programs are all for sector focus. ऑडियो बंद कैसे होना पड़ता? Hello. Can you please switch off your mics? Thank you. Yeah, the programs are all sector focused in the sense that it is not a generalized program of BBA. We are getting into actually those industry and those sectors which requires people to be experientially trained and also have a better understanding of the industry and also the theoretical as well as practical aspects. That's how we have BBA in retail, BBA in logistics, and BBA in ports, and also BBA in digital media. 70% of the teaching is done through practicals and experiential learning. Here, the students learn by doing. We have the very well-equipped labs and training centers, skill centers, wherein all the various aspects that go into making the entire area into an experiential learning process and also a practical and skill training sessions are conducted here. So you get to know the exact feeling of how it is to work in an environment in the specialized industry. There are skill centers, learning factories set up with the industry experts. So as you know, when you're talking about retail, we have a shopper stop who have set up, the look and feel of a shop along with even the merchandise where the students are trained to actually learn about selling, operations, merchandise, visual merchandising, color displays. You talk about layouts, the store design, promotions, procurement,
stock rotations, and everything that is to do with the training. You have a unique pedagogy of skill assessment, internship every year, industry experienced faculty, and interdisciplinary and self-development for everyone. I'm very happy now to introduce to you all Mr. Vivek Velankar, who is the chief person who will be taking this career guidance program ahead. Mr. Vivek Velankar comes with a BE and MBA with 15 years of industry experience in India and USA, having worked in prestigious companies like Bajaj Auto, Philips India, Videocon, Phenolix Cables, and Ernst & Young LLP USA. He has wide experience in ERP consulting and worked on SAP implementations in India, USA, Canada, and Brazil. Since 2000, he has established his own software firm, ARV Infotech, and is mainly in IT recruiting. He was a member of Board of Studies for Management in Pune University for 2 years, currently a member of Board of Studies for Yashwantrao Chavan Open University. He is also visiting and guest faculty at various management institutes. He has to his credits many publications, many articles that he's written for leading newspaper, also for various magazines and books. Without taking much time, I would like to now hand over the further proceedings to Mr. Vivek Velankar, who I'm sure will give you enough of information and also pep you up with the kind of talk that he's going to give about the career counseling aspect. Welcome, sir, and you can take over. Thank you. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे को पता है कि आप सब लोग अभी 12th पास हो गए हो एंड यू आर लुकिंग फॉर व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो गए, आप सबको पता है, एंड पूरा वर्ल्ड का हिस्ट्री और ज्योग्राफी चेंज हो गया है। एंड मोस्ट अफेक्टेड आर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग क्या करें आगे, किसमें करियर मिलेगा, किसमें नहीं मिलेगा, आगे मेरा क्या होगा। रिसेशन के बारे में सब लोग बोल रहे हैं और अभी मेरे को कैसा एजुकेशन मिलेगा तो क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। So basically that is exactly what students want to know now कि आगे क्या करना चाहिए, मेरा क्या होगा और कैसे मेरे को अच्छा करियर आना चाहिए, so that I do best in my life. Friends, मेरे को ये पता है कि ये बहुत इम्तिहान की घड़ी है सबके लिए। एक जगह ऐसी सिचुएशन है कि हमारे यहाँ लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है, लोगों की नौकरियां चली जा रही है। दूसरी जगह ऐसा भी बोला जा रहा है कि स्किल मैन पावर नहीं मिल रही है। सो बजवर्ड आगे का क्या है? बजवर्ड आगे का है स्किल एजुकेशन। स्किल एजुकेशन बोले तो आजकल लोगों को लगता है प्लम्बर होना है या गैरेज मैकेनिक होना है वगैरह वगैरह। दैट इज अ टाइप ऑफ स्किल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट वो स्किल एजुकेशन अलग है। और ये जो कमिंग एरा जो है, ये एरा में जो लगने वाला स्किल एजुकेशन है वो अलग है। आप 12th पास आउट हो, आपको आगे ऐसा डिग्री के लिए जाना चाहिए जहां से आपको स्किल एजुकेशन मिलेगा। हम लोग थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। चाहे आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, एक लगता है कि हम डिग्री करेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो लोग बीए, बीकॉम, बीएससी के पीछे जाते हैं। बट एक चीज डेफिनेटली है कि अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी करने वाले हो तो बीए, बीकॉम, बीएससी के बाद नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के चांसेस अभी के एरिया में और आगे के एरिया में भी बहुत कम है। ये आप सबको भी पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता है। कम से कम मास्टर्स करने पड़ेंगे। मास्टर्स करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है एमए, एमकॉम, एमएससी वालों को जॉब कितने मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। पारंपरिक एजुकेशन जिसको बोलते हैं वहां से आपको थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग स्किल एजुकेशन। तो स्किल एजुकेशन के लिए सबके लिए, चाहे वो 12th कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, सबके लिए क्या हो सकता है? सबके लिए ऐसे कोर्सेस होने चाहिए ग्रेजुएशन के
कि जिसमें उनको ये कोरोना के पश्चात जो एरा आने वाला है वहां पे टिक सके, ऐसी स्किल्स एम्बाइब हो जाए। ये खाली इतना काफी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आपको ये स्किल्स मिल सकती है। स्किल्स ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहां पे आपको आपकी फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा एजुकेशन मिले जो एजुकेशन में आपको प्रैक्टिकल का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट होगा। थ्योरी सीख के ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकल ज्यादा सीखना है आपको। सो प्रैक्टिकल ज्यादा सीखने को मिलना चाहिए। उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल ये नए जमाने में क्या चाहिए, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स आपको अच्छी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी चाहिए। तो ऐसा ब्लेंडिंग चाहिए कोर्स का कि जहाँ पे प्रैक्टिकल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, जहाँ पे आपको इंटर्नशिप भी करने को मिले, जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे होने चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स अच्छे होने चाहिए, फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, एक्सीलेंट फैकल्टी होनी चाहिए, और उसके बाद प्लेसमेंट्स अच्छे होने चाहिए। क्योंकि आप लोग जब कर रहे हैं ना कोर्सेस, तो कुछ तो मोटिव है उसके पीछे कि ये ऐसा नॉलेज हम एक्वायर करेंगे जो आगे जाके हमें प्लेसमेंट्स के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत यूजफुल होगा। सो ये सब चीजें कंसिडर करने के बाद हम लोग ऐसे अभी ऑप्शंस के बारे में देखना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं इसके बाद, जहां से अपने को अच्छा सा एम्प्लॉयमेंट, अच्छा सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और स्किल्स अच्छे हम लोग एम्बाइब कर सकते हैं। सो ऐसे ग्रेजुएशन कोर्सेस जिसको हम बीबीए भी बोल सकते हैं या ग्रेजुएशन कोर्सेज भी बोल सकते हैं, ऐसे ग्रेजुएशन कोर्सेज हमको कंसिडर करने होंगे जहां पे आपको जहां से आपको अच्छा सा एजुकेशन मिल सकता है। नाउ व्हाट आर दो स्किल्स और व्हाट आर दो कोर्सेस, उसके बारे में देखो। इसके आगे क्या होने वाला है ये हमको पहले समझ में लेना चाहिए। इसके आगे जो एरा है ना, वहां पे लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा मिलने जुलने वाले नहीं है। लोगों को ऐसा कुछ चाहिए जो सीधा घर में बैठ के कंप्यूटर के ऊपर वो कुछ कर सके। सो अगर ये देखने जाएंगे तो ऐसे कोर्सेस है जैसे रिटेल मैनेजमेंट, ई कॉमर्स इज अ बज़वर्ड नाउ। ये कोरोना से पहले भी ये हो रहा था। जैसे आप लोग देख होंगे कि जो अभी नया जनरेशन है वो सब क्या कर रहा है। ये नया जनरेशन आपको एक सेकंड, नया जनरेशन जो है ये क्या देख रहा है कि कोई शॉप में जाना नहीं चाहता है। उनको ये लगता है कि शॉप से ज्यादा अच्छा मेरे को अगर मैं ऑनलाइन परचेसिंग करूं तो मिलता है। आप में से भी बहुत लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह के ऊपर से बहुत सारी परचेसिंग करते होंगे। अभी अमेजॉन जैसी कंपनी है जो ऐसे बिजनेस में आई है कि वहां पे बहुत कुछ मिलता है लोगों को घर में बैठ के। सो ई कॉमर्स ये अभी बज़वर्ड होने लगा है, जहां पे आपको घर में बैठे सब कुछ मिल सकता है। यहाँ पे ई कॉमर्स में दो चीजें, एक बिजनेस टू बिजनेस, यानी बिजनेसेस भी आजकल सीधे मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग सीधा ऑनलाइन परचेसिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने शुरू किया है, बाकी सब छोड़ो। गवर्नमेंट का ई पोर्टल है जहां पे बहुत सारे लोग अपना प्रोडक्ट्स डालते हैं और जहां से बहुत सारे इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस परचेसिंग करते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट में कंपलसरी हो गया है कि उनका जो ई गवर्नेंस का साइट है, जहां से सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पहले उधर जाके देखेंगे वहां पे क्या कॉस्ट मिलता है, और उससे नीचे मिलता है तो ही मार्केट से खरीदी करेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट की वो वेबसाइट से खरीदी करेंगे। सो ई कॉमर्स में प्राइवेट प्लेयर्स नहीं, गवर्नमेंट भी आ चुका है। सो बेसिकली ई कॉमर्स इज अ बज़वर्ड नाउ। आप देखते होंगे कि ये रिटेल स्टोर्स तो बहुत सारे खुल चुके हैं,
बहुत बड़े बड़े लोग रिटेल स्टोर्स में आए हैं, डीमार्ट से लेके सब लोग आए हैं। जब दूसरी बाजू में ई कॉमर्स बढ़ रहा है, इनका भी कॉम्बिनेशन है। सो ऐसा करियर ऑप्शन, ऐसा कोर्स आपको चाहिए जो आपको रिटेल भी सिखाएगा, जो आपको ई कॉमर्स भी सिखाएगा। सो जैसे वर्ल्ड आगे चला जाएगा, आपको उसी तरह से आइदर रिटेल में या ई कॉमर्स में जॉब मिलना चाहिए या अपना खुद कुछ करना चाहिए। आज भी सिचुएशन ये है, क्योंकि हमारे भी बच्चे यही कर रहे हैं कि जो कुछ भी परचेस करने हो आजकल वो ई कॉमर्स B2C में चले जा रहे हैं। बट आज ये 2-4 महीने का पीरियड छोड़ो, इसके पहले भी रिटेल आउटलेट्स वेयर सो मेनी, और बड़े बड़े प्लेयर्स रिटेल आउटलेट्स में आए हैं, वहां पे बहुत मैन पावर लगता है। ये जो कोरोना का संकट है वो थोड़े दिन चलेगा, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, बट वंस द मेडिसिन इज अवेलेबल ऑन दैट, द एंटायर वर्ल्ड विल बी बैक ऑन व्हील्स। सो ये बैक ऑन व्हील्स जब आ जाता है तो ये रिटेल जो स्टोर्स हैं, जहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं, वो तो उनका तो बिजनेस चलने वाला ही है, बट उसके साथ साथ ई कॉमर्स का बिजनेस भी चलने वाला है। सो हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि हमें दोनों का ब्लेंड, कि जहां पे अगर रिटेल में कुछ करना है तो उसके लिए जो लगता है कि शॉप में जाने के बाद उसके लिए जो स्किल्स लगते हैं शॉप में, चाहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, चाहे फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट हो, चाहे सेलिंग हो, चाहे कस्टमर सर्विस हो, जो भी कुछ शॉप में लगता है वो सभी स्किल्स हमें सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ये एरिया में भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं और उनका काम तो चलने वाला ही है। अभी ये 5-6 महीने का पीरियड थोड़ा खराब जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि उनका पीरियड खराब होगा, आगे भी ये चलता रहेगा। बट साइमल्टेनियसली हमें ई कॉमर्स में भी देखना है, ई कॉमर्स में भी सीखना है, जिसमें हम B2C जो है, B2B जो है, यानी बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, ये जो कंसल्टेंसी लगती है लोगों को, ये जो स्टोर्स आ रहे हैं जो वर्चुअल है, उसमें भी बहुत सारी मैन पावर लगती है। आज भी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील जैसे बड़े बड़े कंपनीज बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ले रही है, बहुत स्टूडेंट्स ले रही है, बहुत लोगों को जॉब दे रही है, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू रन देयर बिजनेसेस। क्योंकि उनको भी इन्वेंट्री कंट्रोल में काम करना पड़ता है, उनको भी नए नए सोर्सिंग करने पड़ते हैं, उनको भी प्राइस निगोशिएशंस करनी पड़ती है, उनको भी वेयर हाउस मैनेजमेंट करना पड़ता है, वेयर हाउसेस रखने पड़ते हैं, उनको भी सप्लाई चेन में काम करना पड़ता है। सो चाहे वो ई कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ई कॉमर्स वाला कंपनी हो, चाहे वो रिटेल वाला कंपनी हो, दे रिक्वायर पीपल हु नो प्रैक्टिकली समथिंग अबाउट रिटेल और ई कॉमर्स। इसके आगे जो एरा आने वाला है, लोगों की परचेसिंग हैबिट्स पर चेंज होने वाली है, तो वो परचेसिंग हैबिट्स के अनुसार जो लोग मार्केट में टिकेंगे, जो लोग मार्केट में अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, ऐसे बिजनेसेस चलने वाले हैं। और वो बिजनेसेस में जो लोग लगने वाले हैं, वो ये लोग लगने वाले हैं जो इसमें कुछ ऑलरेडी सीख चुके हैं। से फॉर एग्जांपल, कम से कम 1 साल, 8 महीना, 9 महीना जिन्होंने काम किया है along with the degree. So internship along with the degree is most important. हाथ से जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने काम का एक्सपीरियंस लिया है, उनको आगे जाके अपॉर्चुनिटीज की कोई थ्रेट नहीं है। जो लोग फॉर्मल एजुकेशन लेंगे, खाली सीखते जाएंगे, उनके लिए प्रॉब्लम आ सकता है। जो लोग ब्लेंड है, मिक्स स्किल भी ले रहे हैं, थ्योरी भी सीख रहे हैं, दोनों का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसा होता है वो भी देख रहे हैं, उनके लिए अभी आगे जाके अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आने वाली है। ये रिटेल और ई कॉमर्स से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। अगर आप देखोगे तो कम से कम 25-30 तरीके की अपॉर्चुनिटीज रिटेल और ई कॉमर्स में सबके लिए आने वाले हैं, सबके लिए अवेलेबल है, आज भी है, कल भी होंगे, क्योंकि इट इज द फ्यूचर एंड लॉट ऑफ पीपल आर नाउ गोइंग फॉर दैट। आज भी स्टैटिस्टिक्स ऐसा है कि देश में से अराउंड 30-35 करोड़ जनता जो है वो ई कॉमर्स और जिसको ऑनलाइन परचेसिंग बोलते हैं वो कर रही है आज भी।
और जैसे कोरोना पीरियड में हम सब लोग अभी मोर और मोर ई की तरफ जा रहे हैं, उसका मतलब यह है कि आगे ये प्रोपोर्शन और बढ़ता जाएगा। सो जो लोग ई कॉमर्स सीखेंगे उनके लिए अच्छा सा जॉब्स या अच्छा सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों मिल सकता है। और एक गवर्नमेंट का भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग दिस थिंग नाउ। सो रिटेल और ई कॉमर्स इज वन फील्ड where if you do a graduation, चाहे उसको नाम कुछ भी दो, BSc बोलो, BBA बोलो, कुछ भी बोलो, उसमें अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आगे जाके उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको डेफिनेटली मिल सकती है। अभी ये रिटेल और ई कॉमर्स में होता क्या है, लोग B2B B2C में फ्रंट लाइन में ऑर्डरिंग होता है और सप्लाई होता है, बट ये होएगा कैसा? कंप्यूटर में से या मोबाइल में से चीजें आके नहीं गिरती अपने घर में। उसमें जो होता है उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। में कल भी डिमांड था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि चीजें ऐसी है। जैसे हम इंडिया का खाली देखें तो 23 लाख करोड़ इतना तो प्रोडक्ट्स हर साल इंडिया से सब जगह जाता है। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब ये मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा कैसा? सो ऐसा बोला जाता है कि सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में बेस्ट बिजनेस जॉब्स वर्ल्ड में है, खाली इंडिया में नहीं, क्योंकि सभी जगह ये तो लगने वाला ही है। जैसे आपको एक बार ई कॉमर्स से ऑर्डर मिल गया तो एक्चुअली ऑर्डर डिलीवरी होने तक का जो सब कुछ है दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। तो प्रोक्योरमेंट भी करना पड़ता है, स्टोरिंग भी करना पड़ता है, डिस्पैच भी करना पड़ता है, डिलीवरी भी करना पड़ता है। उसमें बाकी भी चीजें आती हैं कि जैसे इंश्योरेंस आता है, वेरियस लॉज आते हैं, ये सब इज सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। फ्रेंड्स, नो बिजनेस, चाहे वो कौन सा भी बिजनेस हो दुनिया भर में, विदाउट सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स चल नहीं पाता है। उसके भी कोर्सेस है, जो भी आपको अपने को वो भी कोर्सेस ऐसे चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, जिसमें इंटर्नशिप हो। फ्रेंड्स, एक बात आपको बोलता हूं कि आगे के एरा में जो हाथ से काम किए हैं, जो इंटर्नशिप किए हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिए है, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में भी यही करना होगा। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में बहुत फील्ड्स है, बहुत, जिसमें वेयर हाउस मैनेजमेंट है, जिसमें प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट है, जिसमें ट्रांसपोर्ट एग्जीक्यूटिव ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें डिलीवरीज है, जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट है, जिसमें पूरा जो प्रोक्योरमेंट से लेके घर में चीजें लाके या बिजनेस में चीजें ला देने तक सब कुछ उसके अंदर कवर है। So logistics supply chain is the buzzword of the next era, जहां से आपको एक्चुअली बहुत सारा जॉब्स और बहुत सारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। एंड दैट इज नॉट ओनली इन कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स। आज सप्लाई चेन का बहुत सारा जरूरत हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी है, जहां पे लोगों को पेरिशेबल गुड्स विद बेस्ट टाइम में पहुंचाने होंगे, जहां पे स्टोरिंग ऑफ पेरिशेबल गुड्स, जिसको हम बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हाउसेस बोलते हैं, दैट इज आल्सो कमिंग अंडर सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। So supply chain and logistics management is the backbone of every business in today as well as tomorrow also. तो अगर ये बैकबोन में हम जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, वो चाहे इनलैंड हो या फॉरेन हो। अभी जैसे इसका ही दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स। आज क्या हो रहा है कि इंडिया से बहुत सारी चीजें बाहर जा रही है पूरे दुनिया में, और पूरे दुनिया से बहुत सारी चीजें इंडिया में आ रही है। जो भी पूरे वर्ल्ड में जितना भी गुड्स का एक्सचेंज होता है ना, 98% ऑफ द गुड्स एक्सचेंज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पूरा सी से होता है, समुद्र से होता है। और उसके लिए
पूरा जो मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसके स्टोरिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका लॉजिस्टिक्स, उसका इंश्योरेंस, उसका लॉज एंड रेगुलेशंस, उसके कस्टम्स, उसका एक्साइज, ये सब जो देखना पड़ता है वो आता है पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स मैनेजमेंट, which is a counterpart of supply chain and logistics management. So ये दोनों एक से एक मिले हुए हैं, हाथ में हाथ लेके आगे चलते हैं। और उसमें फ्रेट मैनेजमेंट है, शिप कस्टम्स ऑपरेशन है, सीएफएस, कंटेनर फ्रेट स्टेशंस। आप अगर देखते हो ना, आपको बड़े बड़े कंटेनर्स देखने को मिलते हैं बहुत सारे रोड्स के ऊपर, उसके ऊपर जो कंटेनर रखा होता है ना, ऐसे कंटेनर्स ये फ्रेट स्टेशन में हजारों में होते हैं। तो उनका मूवमेंट, उनका मैनेजमेंट, उनका पूरा लोडिंग, उनका अनलोडिंग, ऑल इज कवर्ड अंडर terminal ports and terminal management. So logistics, supply chain, ports management, terminals management, ये जो एरिया है, ये इसके आगे बहुत अच्छे तरह से सबके लिए करियर्स देके जाने वाला है। सो माय रिक्वेस्ट इज, आगे जो करियर्स आ रहे हैं उनको देख के आपको ये एरियाज में अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको फ्यूचर मिलेगा। आज लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में एमबीए के कोर्सेस आ चुके हैं, जैसे सिम्बोसिस का ही बहुत फेमस कोर्स एमबीए इन लॉजिस्टिक्स इन सप्लाई चेन है, और मैं आपको बोलता हूँ इट इज इन हॉट डिमांड, क्योंकि ये तो बैकबोन है सभी बिजनेसेस का। सो ये एक और अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए बहुत अच्छी मिल सकती है। डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, देखो आजकल क्या हो रहा है, इवन द न्यूज़पेपर्स जो कल तक इट वाज अ नेसेसिटी, नाउ इट हैज बिकम अ लग्जरी। लोग आजकल न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, एवरीबडी इज ऑन देयर मोबाइल और maybe computer, they are going through the news items on that. So newspaper is in a very bad condition, they are virtually dying, because उनका जो बैकबोन है ना, उनका जो मेजर एरिया ऑफ इनकम है वो है एडवर्टाइजमेंट्स, चाहे वो टीवी मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सबका श्वास है एडवर्टाइजिंग। अभी लोग क्या बोल रहे हैं, अरे क्यों एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा खर्चा करें हम लोग, जब लोग ये पढ़ ही नहीं रहे। बेटर हम लोग पैसा खर्चा करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। सो आप कौन सा भी साइट ओपन करो, आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स वो साइट्स पे दिखेंगे, आपको फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगे, आपको व्हाट्सएप पे एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगे। व्हाई? बिकॉज पीपल आर थिंकिंग कि ये सबसे इजी वे है to reach people. Social media has become now a necessity of everybody. 5-6 साल पहले सोशल मीडिया लोग सोचते भी नहीं थे, आज सोशल मीडिया, कुछ भी होने दो, सोशल मीडिया आज बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स से लेके बिजनेस टाइकून्स तक सब सोशल मीडिया पे आए हैं, एक्टर्स सोशल मीडिया पे आए। क्यों? सबको पता है कि नाउ द बज़वर्ड इज सोशल मीडिया। अगर ये सब सोशल मीडिया पे चलता है तो जो जिनको कुछ बेचना है, जिनको कुछ खरीदना है, जिनको एडवर्टाइजमेंट करना है, वो आगे जाएंगे कहाँ? दे विल गो टू सोशल मीडिया। एंड सो डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मीडिया इज नाउ अ बेसिक थिंग रादर देन क्या बोल सकते हैं उसको, कि ये नेसेसिटी हो गई है अभी। इट्स डोमिनेटिंग एवरी फील्ड। अब go to any field, now digital media and digital marketing is dominating. आज भी हम लोग अपने आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म, जूम से लेके हमारे यहाँ गूगल मीट तक, सबका जो व्यूअरशिप है, सबकी जो कस्टमरशिप है, it has gone 10 times, 20 times, 100 times in last 3 months. People are used to it. लोगों को अभी अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं यार क्यों जाके किसी यहाँ जाके बैठे, घर में बैठ के जहाँ चाहे वहां हम जूम से
या गूगल मीट से या अदर वेबिनार मीन्स से ज्वाइन हो सकते हैं किसी भी मीटिंग में जो चाहे हम इनपुट्स ले सकते हैं. सो डिजिटल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग हैव बिकम अ बज़वर्ड्स नाउ. सो अगर आपको अपना करियर करना है आगे का, तो डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, ये दोनों चीजें आपको बहुत कुछ दे सकती है. हमने पहले देखा ई कॉमर्स रिटेलिंग. तो ई कॉमर्स का जो लोगों तक पहुंचाना है, रिटेलिंग का लोगों तक पहुंचाना है, वो कैसे पहुंचाएंगे? डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग से. और वो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो करेंगे सप्लाई चेन और जो मार्केट है सप्लाई चेन का, उससे कर. सो ऑल दीज आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. वंस वी आर टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स, ऑन वन हैंड it is digital media and digital marketing, on the other hand it is supply chain management. So all are interconnected. ये आपको ध्यान में रखना होगा. So आगे जो careers आ रहे हैं उसमें digital media, digital marketing are the most important things. अभी आप थोड़ा statistics देखोगे ना, तो वो भी आपके सामने स्लाइड में दिया है कि पैंडेमिक के बाद, यानी ये कोरोना संकट के बाद, जो कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज के बारे में आपने सुना होगा कि उनका सेल कम हो गया. बहुत सारे कंपनीज अभी क्या करे पता नहीं उनको. बट ये जो कंपनीज है ना, अमेजॉन है, टेस्ला है, फेसबुक है, जूम मीडिया है, अलीबाबा है, ऑडी, एडोबे, यूनिलीवर, रिलायंस एंड फार्मा कंपनीज, ये सब आगे जा रहे हैं. इसमें बहुत बड़ा शेयर ये डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का है. अभी फिजिटल ये नया वर्ड आया है. दैट मीन्स फिजिकल एंड डिजिटल. फिजिकल तो अपने को चीजें लगने वाली है, वो तो फिजिकली आएंगी, बट एवरीथिंग एल्स विल बी डिजिटल. मार्केटिंग से लेके ऑर्डरिंग से लेके सब कुछ डिजिटल हो जाएगा. बट फिजिकल तो सप्लाई चेन से आने वाला है. सो फिजिटल ये एक नया वर्ड अभी आ रहा है. एंड लेट मी टेल यू कि प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, रेडियो मीडिया ये चला नहीं जाएगा, बट दे हैव टू फॉल इन लाइन विथ डिजिटल और वेब मीडिया नाउ. अभी पिक्चर्स भी डिजिटल और वेब मीडिया पे आ रहे हैं. कोई थिएटर में इसके आगे जाके पिक्चर देखेगा नहीं, पता नहीं है. ऐसी यहां तक हम लोग आ चुके हैं. सो उसके लिए जो रोल्स है, उसमें जो मैन पावर लगती है, वो सब अभी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है. ये ध्यान में रखो. सो लोगों की आदतें चेंज हो रही है, तो उसमें कंटेंट राइटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है, डिजिटल मार्केटिंग है. ये सब के लिए अभी इसके आगे बहुत सारा मार्केट आ जाएगा. इसमें एम्प्लॉयमेंट भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है. कंटेंट राइटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स. Digital marketing is both employment as well as self-employment. So we have to think from that angle that it is now the buzzword for the next gen. So these are some courses which we were talking about from the angle of next generation. क्या कहाँ अपने को ज्यादा करके jobs और self-employment की opportunities मिलने वाली है. So this is one side of it. That is basically retail and e-commerce, supply chain management, and digital media and digital marketing. So this is one area where there will be a lot of jobs for people who are having practical experience and exposure. But coming to other side of it, अभी ये पूरा जो है ना, उसके पीछे है complete computer science. क्योंकि ये सब हम देख रहे हैं, हम मीडिया पे कंप्यूटर पे बैठ के सब आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कहाँ से आएगा? वो तो कंप्यूटर साइंस से आएगा. बट कंप्यूटर साइंस इज नॉट अ बज़वर्ड नाउ. कंप्यूटर साइंस बहुत लोग कर चुके हैं. एंड देन कंप्यूटर साइंस में भी रोज नया कुछ आते रहता है, पुराना डाय हो जाता है. सो हमें ऐसा कंप्यूटर साइंस का ब्रांच चाहिए जो आगे अपने को कम से कम 10-15 साल अच्छा जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देगा. और आज जो बज़वर्ड्स है उसमें से एक है डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
मशीन लर्निंग, ये सब आज के बज़वर्ड्स है। उसमें से एक है डेटा साइंस। डेटा साइंस में होता क्या है? मैथमेटिक्स भी है, कंप्यूटिंग भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, बिजनेस डोमेन भी है, और लोगों के साथ यानी पीपल मैनेजमेंट या पीपल इंटरेक्शन भी है। सो इट इज नॉट प्योरली कोडिंग। हो क्या था आज तक, लोग सोचते थे कंप्यूटर साइंस करना है मीन्स कोडिंग करना है, बस वो ऐसे जा रहा था। अभी ऐसे नहीं है, उसको पूरा देखना है। सो उसको मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, उसको थोड़ा स्टैटिस्टिक्स भी आना चाहिए, उसको बिजनेस के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए, उसको कंप्यूटिंग स्किल्स बोले तो उसको प्रोग्रामिंग भी आना चाहिए। सो इट्स अ मल्टी फैसेटेड थिंग। सो बीएससी डेटा साइंस ये एक और ऐसा कोर्स है जहां से आप 3 साल में, क्योंकि डेटा साइंस तो इंजीनियरिंग में भी है, बट इश्यू इज इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो 4 साल लगते हैं, एक। दूसरा, डेटा साइंस का ग्रेजुएशन बहुत कम जगह पे है। सो आपको पारंपरिक कंप्यूटर साइंस या आईटी इंजीनियरिंग सीखना पड़ेगा। अगर कुछ लेटेस्ट सीखना चाहते हो, 3 साल में मार्केट में आना चाहते हो, तो बीएससी कोर्स कैन बी अ बेटर ऑप्शन। बीएससी डेटा साइंस इज व्हाट इज नाउ, जिसमें सब कुछ आने वाला है। आपका डेटा साइंस आने वाला है, थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग सीखने वाले हो, बिजनेस नॉलेज सीखने वाले हो, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स थोड़ा आने वाला है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस which will be required in future of computer or IT industry employments. So जिनको कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट चाहिए, क्योंकि दैट इज अनदर फील्ड जहां पे एम्प्लॉयमेंट विल कंटिन्यू, और उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है डाटा साइंस या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने की। एंड जॉब्स जो आएंगे वो प्रोग्रामर्स के आएंगे, एनालिस्ट के आएंगे, फंक्शनल एक्सपर्ट के आएंगे, डाटा साइंटिस्ट के आएंगे, एआई प्रोफेशंस के आएंगे, डाटा एनालिस्ट के आएंगे। इसमें आधे जॉब तो डाटा साइंस वाला कर सकता है। सो आगे जाके अगर हमको आईटी या कंप्यूटर फील्ड में कुछ करना है तो उसके लिए आपको डाटा साइंस सीखने की बहुत जरूरत है। आज आईटी इंडस्ट्री में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, आपने भी सुना होगा, पीपल आर ऑन बेंच, लोगों को अभी किसी को रिट्रेंचमेंट की जा रही है, उनको घर में भेजा जा रहा है, उनको लीव पे जाने के लिए बोला जा रहा है, उनके सैलरीज कम हो रहे हैं, बिकॉज वो जो स्किल्स पे आज वो लोग आए कंप्यूटर्स में या आईटी इंडस्ट्री में, वो स्किल्स अभी इतने डिमांड में नहीं रहे हैं। तो उनको रीट्रेनिंग करके डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने के लिए आह्वान किया जा रहा है कंपनीज के द्वारा। इसका मतलब आज भी जो रिक्रूटमेंट होता है ना आईटी इंडस्ट्री में, कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता। रिक्रूटमेंट खाली डाटा साइंस, मशीन लर्निंग इनका और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका ही रिक्रूटमेंट चल रहा है, और आगे जो कम से कम 10-15 साल जो है वो इसके लिए आने वाले हैं। सो माय सजेशन इज, जो व्हाट वी आर लुकिंग टुडे एट, what are the buzzwords, what are the fields which will have scope 3 years down the line. आज स्कोप है करके नहीं चलेगा, खाली हम आगे जाने वाले हैं, आगे जाके किसमें स्कोप आने वाला है, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग नाउ। क्योंकि जब तक आप फ्यूचर का नहीं सोचेंगे, फ्यूचर का नहीं देखेंगे, क्योंकि आज का जो मार्केट है वो अलग है। आप 3 साल बाद मार्केट में आने वाले हैं, 4 साल बाद मार्केट में आने वाले हैं, उस समय क्या डिमांड होगा, उस समय कौन से फील्ड में ज्यादा स्कोप होगा, उस समय क्या नीड्स होगी बिजनेसेस की, उस समय नौकरियों की या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की क्या नीड्स होगी, उनके उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कैसे टाइप के कोर्सेस हमें करने होंगे, इसके बारे में थोड़ा हम लोग आज बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। सो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपको अगर आगे 3-4 साल के बाद कुछ फ्यूचर में देखना है तो ऐसे कोर्सेज के लिए आपको कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेने होंगे। एक और फील्ड है, उसको बोलते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस। कौन सा भी आदमी हो या औरत हो, एवरीबॉडी इज आफ्टर लुकिंग गुड, मेरे को अच्छा दिखना ही है। सो पूरे वर्ल्ड में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स है वो ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में है।
जैसे लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड, डिजिटल मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड, ई कॉमर्स इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड, डाटा साइंस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड, वैसे ही ब्यूटी एंड वेलनेस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड. यस, मेरे को पता है आप लोग पूछने वाले हैं, अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, वो बिकॉज ऑफ मैन टू मैन कॉन्टैक्ट इसमें थोड़ा रिसेशन आ गया है. यस, आई नो इट, ये टेम्पररी फेज है. बट मेरे मित्रों, ये सोचना पड़ेगा आपको, हम आज का नहीं देख रहे हैं, हम 3 साल के बाद का सोचने वाले हैं, देखने वाले हैं. अगर उसमें कुछ करना है तो ब्यूटी और वेलनेस जो सेक्टर है वो कभी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर इंडस्ट्री. भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जैसे आप ये कोरोना के टाइम में भी आप देख रहे हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्या बोल रही है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाओ. कहां से आएगा? हेल्थ केयर से आएगा, वो आपका वेलनेस से आएगा. सो ब्यूटी एज वेल एज वेलनेस, ये जो दो फील्ड्स है कंबाइंड टुगेदर, आपके जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है उसमें पैक होने वाले हैं. सो ये भी आपको सोचना पड़ेगा, ये और एक इंडस्ट्री है. एंड डोंट थिंक कि खाली लेडीज उसमें जा सकती है, लेडीज उसमें कर सकती है. नो, यहाँ बच्चे भी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, अच्छे तरह से उनको भी कुछ एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है. एक एग्जांपल बोलता हूँ, पूना में एक डॉक्टर विनय कोपरकर, नाम भी बताता हूँ आपको, कभी डॉक्टर हुआ 35 years ago, बट ही सेड कि नहीं, मैं डॉक्टरी में नहीं जाऊंगा, आई विल स्टार्ट माय ओन क्लिनिक फॉर मेंस इन सलून सेक्टर. हमको सलून बोले तो लगता है यार क्या है, तो केस कर्टन करेंगे या मशरू करेंगे और क्या करेंगे, वो ऐसा नहीं है. He has been a pioneer in the field, being a doctor also. बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आज वो कर रहा है रिलेटेड टू हेयर, जिसमें इंक्लूडिंग वीग्स, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल हेयर ग्रोइंग, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट्स फॉर दैट. सो इवन इन दैट ऑल्सो जेंट्स आर डूइंग करियर. बाकी तो स्पा से लेके ब्यूटी पार्लर्स वगैरह तो चलते ही रहते हैं, लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा है. एविएशन इंडस्ट्री से लेके क्रूज इंडस्ट्री तक सभी इंडस्ट्री में ब्यूटी और वेलनेस एक्सपर्ट्स लगते हैं. सो दिस इज अनदर फील्ड विच इज नॉट गोइंग टू डाई, विच इज गोइंग टू गो अप इन फ्यूचर. सो हमने ऐसे फील्ड्स आज देखने की कोशिश की है जो आज भी है और कल भी रहेंगे. कल जिसकी डिमांड ज्यादा होने वाली है. बट रिमेंबर वन थिंग, ओनली लर्निंग थ्योरी आपको यहां तक नहीं पहुंचाएंगे. आपको इंटर्नशिप्स करने होंगे, आपको अच्छे से प्रैक्टिकल्स करने होंगे, आपको उसके लिए अच्छी ट्रेनिंग मिलनी होगी. सो यू हैव टू चूज अ इंस्टीट्यूट which offers such courses along with trainings and along with internships. तो ही ये ग्रेजुएशन होने के बाद आपको मार्केट में सीधा with a high head you can go and get good jobs, and not only jobs, you may start something on your own. So friends, this is what basically I wanted to tell you about the future of future careers, tomorrow's careers, नेक्स्ट जेन करियर्स, जहां पे आपको अभी सोच के वो एरियाज में जाना होगा. अगर वो एरियाज में आप चले गए, इसमें से कोई भी एरियाज में, तो आपके लिए बहुत अच्छा करियर डेफिनेटली मिल सकता है. आपको ऐसे करियर अच्छे अच्छे मिले, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं. और इसके बाद एक छोटा प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. Thank you so much, sir, for your inputs, for your guidance, for your valuable talk to help people who are attending this webinar to at least be counseled and take decisions and make the right career move. I'll quickly run through some of the PPT slides that we had exhibited in the beginning.
This is for the benefit of those who've joined late. Just give me 2 minutes, please. We are there. Here we are. Yeah, we're talking about the 4 courses in BBA and also beauty and wellness. BBA retail and e-commerce. We're talking about BBA logistics and supply chain management, BBA ports and terminal, and BBA digital media and marketing. These are the BBA courses. Along with this, we also have our beauty and wellness, which is a BSc course for 3 years. All these courses are 3 years degree courses, which have 6 semesters. And this includes internship of 10 months and also a lot of learning through practicals, 70% practicals and 30% of your theory. Our beautiful campus, which I would like to project to you all through these slides, through these pictures. 15 acres of land with ample space for you to feel free as students to learn and grow. All the highlights of SSPU, First Skill Development University. All courses that we are offering in BBA and BSc Beauty and Wellness are sector-focused programs with 70% teaching through experiential learning, which includes all your practical skills, your research, your mini projects, case studies. Then you have your Viva, continuous learning process, and assessment process, and so on. We have skill centers and learning factories set up with the participation of industry experts. And this is where, in this environment, you will learn the practical aspects and develop the skills required for the industry. Skill assessments, continuous assessment programs. It's a unique pedagogy that we follow, wherein all your skill, all your inputs towards your learning and your growth is assessed continuously. We have internship, as I said, every year with leading industries, leading organizations in the respective faculty, in their respective programs. Industry experienced faculty is, again, an added advantage for SSPU. All the faculties have industry exposure and also have academic excellence. The courses in interdisciplinary and self-development actually teach the students in develop self-coping skills and communication skills and personality development. We have already spoken about the career opportunities when Sir has addressed about the opportunities in retail, in ports and logistics, in digital media, and also in BSc data science and in beauty and wellness. So from here, I would like also to add on that Symbiosis Skills and Professional University offers excellent facility for students to stay in hostel. We offer on-campus hostel facility with separate hostel blocks for girl students and boy students. Best mess facility with veg and non-veg menu, open even on Sunday, comfortable rooms on twins sharing basis with all facilities and attached bathroom. We have security 24/7, hostel rectors to take care of the discipline and for counseling. Games and recreation facility for the hostelites, 24 hours on-campus doctor, medical and healthcare facility. On-campus retail stores, ICICI Bank and ATM facility. Home-like safety for all students. I think all the parents will be most happy about this, that we are assuring home-like safety for students. In fact, Symbiosis Skills and Professional University is like a home away from home. Anti-ragging policy, a big consolation for all who fear that, there could be some kind of mischief among their peers. No, that is not allowed. Strict disciplinary actions and anti-ragging policies are implemented. Most importantly, I would like to stress that we have a COVID-19 action with regular fumigation, sanitization, pest control, and lots of disciplinary issues that all the students have to follow. Students, faculty, and everybody who are in the non-teaching team will have to follow to ensure that we maintain the highest standard of safety for all our students and on the campus. I would like to thank you for having attended this webinar. Again, repeating, we have retail and e-commerce, logistics and supply chain, ports and terminal, digital media and marketing, and BSc Beauty and Wellness courses. Any of you who would like to pursue these courses,
visit www.sca.ac.in. This is our official website, and you can get all the information cited there. You can also take appointment and visit the campus to meet faculty and complete the entire process of counseling. You can join our webinars by experts as and when mentioned on the website. And definitely, I would like to share the phone numbers for any of the details or queries that you have. You may please contact 779 66 or 779 I repeat, 779 or the last digits 76. Thank you so much for being a part of the webinar. And now we throw open the discussion for any of the queries that you have, which will be answered by either me or our expert counselor. So please, you can ask the questions. You can type it on the chat box. Thank you. Any of you who have any queries or questions, you could please type it in the chat box and we will take up these questions individually and answer to the best of our ability. Hello. I await your queries. I await your questions. Sir, you can check your chat box. Come questions. First, where is the waiting? Okay. I see a question which says, which asks actually, where is BBA campus, the address? Well, the campus of Symbiosis Skills and Professional University, which is offering BBA in the sector-focused degree program, is located off Mumbai-Pune Expressway. It is called Kivle, which is an extension of Ravid. And this is where we are located. You can call up and we will share the Google Maps for you to know exact location. But it is off Mumbai-Pune Expressway. Chat box में number डालें. Can you please, as you're asking these queries, would you please share your phone numbers so that, we would also like to be associated with you all by giving you a call officially. And if you have an email ID where we can reach you, please share that also. Okay, is there any maximum age limit for bachelor's program? There is no maximum limit for bachelor's program. It is essential that you should have completed your 12th standard, and of course you should have got the minimum passing marks of 50% and above in any of these schools, of whether it is commerce, science, arts, any other, engineering. But an aggregate of an 50% average is a must for you to get an entry into the courses. We also have a formality of who will have to register online and have an application number. So you have an application online that you have to actually fill and submit at a nominal fee of 1,000 rupees, following which you will also have a PI date, personal interview date. And our faculty will follow this and immediately give you a call and conduct the interview online or on telephone so that you can exhibit your intelligence, answer the various questions and the case study analysis over phone so that you can actually be selected for the course that you have applied for depending on the performance. So basic 50% aggregate average in all the average of all the subjects in your 12th standard, plus you should immediately apply online, get an application number, following which there will be a PI. Personal interview will be taken for the course that you have applied by the faculty expert. That is one. How will classes start after Corona and for first year students, whether it will be online mode or how?
when I'm answering this question, I want to stress that Symbiosis Skills and Professional University make sure that no academics is compromised, even during the lockdown, whether it was the first phase or whether it is a recent lockdown. Symbiosis has ensured that the academic learning and values of education do not get affected. So we have been conducting the online classes from day one, March 18th, and we have done the continuous assessment programs. We have done the skills, practicals, assessment, assignment, group presentations, and also Viva, all online to ensure that students do not get any negative effect on their education or performance because of COVID. Even unit tests have been conducted online to ensure that students do not have any negative effect on their progress in their studies and education programs through SSPU. I don't want to miss any questions, so I'll just go through this. 1 minute. 1 minute. Then there is a question. Yes. Also, another information that I want to share is that we are starting our online classes for the new entrants, new batch of 2020 on 1st of August. We are going to have the induction program on 1st and 3rd of August and start the classes for them online. So there'll be a lot of training, there'll be a lot of sharing, there's a lot of online program activities that the students will be inducted to on 1st and 3rd of August. And following that, we go ahead with the curriculum as per the timetable schedule. There is a question, sir, can you advise best specialization in BBA course? So as you have heard our specialist talk, it is not what is the best course. It is what is your inclination. What is it that you like? See, if I talk about retail and e-commerce or ports and terminals or even logistics and supply chain management, you will have to actually see what is it that you are inclined towards. And that course is what is going to make you successful in the career because you are picking up the course of your interest. So if you ask me, we are offering everything that is the best, and including digital media and marketing, which is a new course, including beauty and wellness course, BSc. So it depends on what you're inclined. What is it that you want to do as a career in life? What is it that you want to pursue? When the college is going to start, I would say that college is already started for the second year and third year students. We have started the online classes from 20th of July. And for the new entrants, which is the first year students seeking admission newly, the college will start the online classes on 1st of August. So I am a model, so I can see my, sorry. Okay, great. Somebody wants to take, saying that, I am a student who's suitable and I would like to see my career grow in ports and terminals. Great, welcome. What is the fee structure of BBA and BSc? I think these specific questions, please log on to the website, which is www.ssou.ac.in, because I'll have to start telling you the entire, the breakup, the kind of fee structure, which is all exhibited on the website. So please, my advice to you is kindly go to the website. And if you have any queries, I have given you the numbers. Please contact us and we will advise you accordingly. Is there entrance test for courses? There is no written entrance test, but yes, for all the courses, which is BBA Retail, BBA Ports, BBA Logistics, BBA Digital Media and Marketing, and BSc Beauty and Wellness, there is a telephonic interview, which is a personal interview, where the expert faculty members will be actually gauging you on your responses towards the subject-related questions, general knowledge, and also the various interest factors that you have, why you're seeking admission to this course. When the course will start, I've already said that we've started the course. Is there any entrance for BSc Data Science? As I said again, there is no entrance written exam, but definitely a telephonic personal interview. Is there any other questions that is pending in amongst any of the participants? If you could type it, then we could answer that, or we could conclude the webinar with a big thank you. Sir, I would like you to just, give you a final word of, conclusion, because I think sir has really come up with a lot of description towards how you could take your career ahead,
and it is a pleasure to have had him to address you all. I think he's approached you all in a very simple, straightforward, and methodical manner in which all of you could understand the importance of actually being counseled when you're taking your admissions for your selected course. I would like to thank you for that, sir, on behalf of Symbiosis Skills and Professional University, and also on behalf of our leaders and Vice Chancellor. And I hope that a lot of you taking his advice will be able to make up your mind and take the course of your choice. Thank you, sir. Just last few words that friends, remember one thing, that you have to think and know about what is future, especially this post-corona era. Everybody is under tremendous stress and tension. That time, don't get stressed out. Think differently. Look for opportunities which are there in future and choose wisely. I'm sure you will have excellent career opportunities in years to come. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. My last point of reconsideration for all of you and emphasis is that please note that you can take your admissions online for SSPU courses. So just log on to www.ssou.ac.in and you can straight away go to admissions simplified for you, and you can seek admissions online. And we are here for any information that you want. Call us and we are there for you. Thank you so much. All the best. And we hope we get good response. Thank you.